Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about homeostasis in plants. Homeostasis is the process of maintaining constant internal environment. Plants maintain gases balance inside them with the help of certain openings. For example, through stomata, extra carbon dioxide is removed or extra oxygen is removed. Root hairs in roots are responsible for the removal of gases, extra carbon dioxide. This is the scanning electron micrograph of leaf epidermis. These are epidermal cells, and these kidney-shaped cells are guard cells. When guard cells are turgid, they become curved and form an opening which is called stomata. Then removal of extra water takes place through transpiration and guttation. Transpiration takes place through stomata. During daytime, when photosynthesis is taking place, stomata are open and water evaporates through stomata. This process is called transpiration. At night time, extra water which is entering into the plant is removed through special pores, hydrophytes, which are present at the margins of leaves of some plants. For example, in strawberry plant, this is a strawberry leaf which has hydrophytes at the margins of leaf from which water has removed. In lilies and grasses, such openings are present at the tips. This water is different from dewdrops. Dewdrops are condensed water vapors which condense during the night, and they are present at all the leaf surfaces or plant surfaces or other surfaces as well. This is a special opening through which extra water is removed at night time. Then removal of metabolic waste take place in many ways. First way is removal by deposition. Plant cells, they store calcium oxalate crystals in the vacuoles of leaves and stem of tomato plant. This is electron micrograph. This is not electron micrograph. This is compound microscopy. These are plant cells which have got calcium oxalate crystals in them. Then leaf fall is also a way of removing waste substances. When leaf fall starts in autumn, plants move all their waste substances in the leaves before leaf fall. So in this way, when the leaf fall, पत्ते झड़ते हैं तो plants के सारे metabolic waste भी लेके साथ जाते हैं. Some plants have become yellow plant leaves at fall time. Others, they become darker color, reddish or brown, depending on the type of chemicals which are formed or transported to the leaf cells. Then removal of resins is another way. Resins are transparent substances which are removed from the cut surfaces of plants like coniferous plants. चीड़ वगैरह के दरख्तों से जो गोंद सी निकलती है वो resins होते हैं. They are transparent. Removal of gums, particularly from कीकर का जो पौधा होता है उससे जो निकलती है इसको कहते हैं these are called gums. और ये मुख्तलिफ तरह की गम्स जो हैं वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज होती हैं. देन रिमूवल ऑफ लेटेक्स. लेटेक्स क्या होता है? वाइट सोल्यूशन विच कम्स ऑफ फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स लाइक रबर प्लांट. ये पाकिस्तान में जो रबर प्लांट होते हैं इस तरह के उसके पत्ते होते हैं, उनको अगर कभी आप तोड़ें तो उसके बीच में से वाइट मिल्की सोल्यूशन निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं. अफ्रीकन कंट्रीज में ज़रा और शेप के रबर प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स और शेप के होते हैं और पर्टिकुलरली उनके अगर स्टेम को इस तरह छीला जाए और उसके साथ एक छोटा सा पाइप सा लगा दिया जाए या स्ट्रक्चर, तो ये जितना भी वाइट लेटेक्स रहता है विच इज़ एक्चुअली रबर, ये इकट्ठा किया जा सकता है और फिर इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है. देन रिमूवल ऑफ म्यूसिलेज. म्यूसिलेज जो है कॉमन एग्जांपल म्यूसिलेज की अगर आप पहचानें, एक तो ये तुखमलंगा के जो सीड्स होते हैं इनको अगर वाटर में सोक करें तो उसके इर्द गिर्द जो ये
म्यूकस लाइक सब्सटेंस बन जाता है, ट्रांसपेरेंट सा, गमी सा, दैट इज म्यूसिलेज। एक कॉमन जो एग्जांपल है वो है भिंडी की लेडी फिंगर, उसको अगर कट करके वाटर के साथ अगर टच करें तो वो म्यूसिलेज उसमें बहुत ज़्यादा होती है। सर्टन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि यहाँ शो हुआ है, इनके ऊपर म्यूसिलेज प्रोड्यूस होती है और ये म्यूसिलेज जो है फिर ट्रैप करती है इंसेक्ट्स को और हेल्पफुल होती है फॉर द इंसेक्टिवोरस प्लांट टू कैप्चर एंड ट्रैप इंसेक्ट्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट होम्योस्टैसिस, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरह प्लांट्स अपने सेल्स के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को और सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर: हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जो सेल के सराउंडिंग में जब हो तो उसकी कंसंट्रेशन वाटर और सॉल्ट्स की वही हो जो सेल के अंदर है। सो जितना वाटर सेल के अंदर आ रहा है और जितना वाटर सेल के बाहर जा रहा है वो एक जितना होता है, बराबर होता है। प्लांट्स के सेल ज्यादातर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होते हैं, ब्लड नहीं होता उनके अराउंड, वाटर होता है। वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है और बाहर सेल्स के वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्ट्स की कम होती है। इसके मुकाबले में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और वैक्यूल का जो सोल्यूशन है वो उसकी वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो वाटर ज़्यादा बाहर से अंदर की तरफ आता है। जब सेल में प्लांट सेल में वाटर बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो पुश करता है सेल वॉल को बाहर की तरफ, ऐसे सेल को कहते हैं टर्जिड। जब पौधे को अच्छी तरह ढेर सही पानी दिया हो तो उसके सारे जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं वो फ्रेश लगते हैं क्योंकि वो टर्जिड होते हैं। अगर आइसोटोनिक हो जाए तो फिर वो सेल्स थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। सो सेल वॉल इज नॉट पुश्ड फ्रॉम इनसाइड, सेल सिचुएशन इज कॉल्ड फ्लैसिड। लेकिन अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, प्लांट सेल को, हाइपरटोनिक ऐसा होता है जिसमें द सराउंडिंग फ्लूइड कंटेन्स मोर सॉल्ट एंड लेस वाटर, सोल्यूट्स ज्यादा हो वाटर कम हो, तो फिर क्या होगा कि उस साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले में ज्यादा होगी। सो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, एक्स ऑस्मोसिस, वाटर बाहर चला जाएगा। जब सेल से वाटर बाहर जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। अब सेल वॉल तो श्रिंक नहीं करेगी, सेल वॉल उसी तरह रहेगी, लेकिन सेल जो है वो अंदर से श्रिंक कर जाएगा, उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। ऐसे प्लांट सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो इस लिहाज से प्लांट्स की 3 किस्में हैं: हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो वाटर में रहते हैं, आइदर दे आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड और पार्शली सबमर्ज्ड। ये जो वाटर लोटस आपको नजर आ रहा है, लोटस प्लांट, ये पार्शली सबमर्ज्ड है, इसके कुछ हिस्से पानी के अंदर हैं, कुछ हिस्से पानी के बाहर। दे नीड टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी इनके सेल्स के अंदर घुस रहा है। इनकी सिचुएशन क्या है? दे आर लिविंग इन वेरी मच हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन, so continuously water is entering into them in their cells and they have to remove extra water. इसलिए इनके broad leaves हैं जिनसे water evaporate कर सके, and they have got large number of stomata on the upper epidermis. Lower epidermis तो नीचे की तरफ है, अमूमन वो पानी के साथ in contact होता है, तो upper epidermis से के बहुत ज़्यादा stomata होते हैं which are responsible for large quantity of transpiration, और बहुत ज़्यादा water evaporate कर जाता है through stomata on their surface, और ये अपने cells को proper shape में manage रख सकते हैं in this way. Then xerophytes are those plants which live in dry or desert environment. They've got thick waxy cuticle to prevent water loss. They've got less number of stomata. They've got deep roots. Most of the time they have got succulent organs which are actually the stem or roots having special water storage parenchyma cell. And in some xerophyte, leaves are modified into spines. ये डिफरेंट तरह के जीरोफाइट्स हैं, वो जीरोफाइट्स जिनमें सिर्फ सकुलेंट ऑर्गन्स हैं और स्पाइंस फॉर्मेशन नहीं हुई, जैसे एलोवेरा प्लांट है या और ये इस तरह के प्लांट आपने देखे होंगे, नाम इनके ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप इनको मुख्तलिफ जगहों पे देखते रहेंगे कि इनके जो लीव्स हैं वो
लीफ या स्टेम जो है वो थिक, जूसी और फ्लैशी हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स। ये वो जीरोफाइट्स हैं जिनमें के स्टेम थिक और फ्लैशी है, सकुलेंट ऑर्गन है, और जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। और द पर्पस ऑफ दिस इज टू रिड्यूस द वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। द थर्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस इज हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं विच लिव इन आइदर सी वाटर और सॉल्टी एरियाज। जैसे ख्योड़ा सॉल्ट माइन के इर्द की जो जमीन है उसमें भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है, उधर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो आम प्लांट्स नहीं है, वो हेलोफाइट्स हैं जो उधर ग्रो करते हैं। दे कैन लिव इन एरियाज वेयर देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। क्यों? क्योंकि इनके वैक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट स्टोर हुआ होता है। क्योंकि वैक्यूल का सोल्यूशन हाइपरटोनिक होता है टू द सराउंडिंग, तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल। अगर हम इसको इस लिहाज से देखें कि अगर ये लेट सपोज हेलोफाइट्स हैं तो वो वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स भर लेते हैं, और बाहर जितना वाटर कंसंट्रेशन है उससे भी ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन कम हुई होती है वैक्यूल में। साइटोप्लाज्म में नॉर्मल सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, लेकिन सेल पूरे की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो ऐसी होती है कि उसमें से वाटर लॉस नहीं होता। सो in this way, halophytes are capable of surviving in the areas where there is very large quantity of salts in the surrounding. ठीक है जी। They live in hypertonic situation, but they are capable of retaining water in them because they stored large quantity of salts in their vacuoles. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सी ग्रासेस जो समुंदर के पानी में रहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये खास तरह के फॉरेस्ट होते हैं जो समुंदर में उगते हैं। पाकिस्तान के साहिल के साथ भी मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और इनकी खास तरह की रूट्स ये आपको बाहर नजर आ रही हैं। और कुछ और तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं। So this is all about homeostasis in plants.